Hello everyone, welcome to lecture 4 of physics at Global Career Academy. So we are intended to do our next topic, which is 3.4. In that, instantaneous velocity and the speed is explained, right? Instantaneous velocity and speed. But to understand this topic, again we need to learn three basic concepts of maths. So this lecture is for these three different terms. In last lecture we already discussed about the slope, and we are going to discuss further about it. We are also going to talk about the tangent, and we are also going to talk about the differentiation. So let me tell you, in this lecture we are going to discuss those things which is required to explain the physics topic. Okay, so मैथ्स में कुछ टर्म या कुछ फंडामेंटल्स है, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. So let us recall the term slope. Okay, so slope, we were expressing it by small m. Okay, consider that there is a y versus x graph is there, and we have one straight line. Okay, we have one straight line. How can I find out the slope for this? Okay, so you can take any arbitrary points. मान लो कि हमने ये x2 बोल दिया, इसको हमने x1 बोल दिया. Then after its corresponding points on the y-axis are, let us say this is y2, let us say this is y1. Okay, and the slope m can be given as y2 minus y1 upon x2 minus x1. So this was the fundamental about the slope. Now if I will see this particular thing, okay, ये जो line है उसको मैं फिर से यहाँ पे redraw कर रहा हूँ. Okay, the same line is drawn over here, and if I will ask what is the height of this, then you will say that this point is y2, this point is y1, and that is how the height of this triangle is y2 minus y1. Similarly, if I will ask you what is this, ये कितना है, then this point is x2, this point is x1, and that is how you can say that it is x2 minus x1. Okay, now let us say this angle is theta, this angle is theta. So if I will ask you what is the value of tan theta, what is the value of tan theta, then you will say that this is the opposite side, and opposite side's value is equals to y2 minus y1 upon the adjacent side, which is x2 minus x1, and that is equals to tan theta. Now if you will see these two things carefully, then you will realize that m and tan theta both are same. So this is the another way through which you can find out the slope. If you know the angle, then you can take its theta. आपने उसका थीटा ले लिया तो आपको स्लोप मिल जाएगा, right? Okay, now next topic. So tan theta is also known as a tangent. मान लो कि हमारे पास एक कर्व है, let us say this kind of curve is there, then how I can find out the tan theta या फिर इसका टेंजेंट है वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, that we will see. So what you have to do, if you want to find out the tangent at this point, अगर आप इस point पे tangent find out करना चाहते हैं, so you should put a scale such that it should touch that point only, सिर्फ इसी point को touch करना चाहिए, and the black line which you can see is known as a tangent. If I want to draw a tangent at this point, then you have to put it like this, सिर्फ वही point को touch करना चाहिए, and you have to draw a line. So this is known as a tangent. So as you can see over here, यहाँ पे एंगल जो बन रहा है x एक्सिस के साथ, let us say it is theta 1. यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है थीटा 2. सो यू कैन सी दैट यहाँ पे थीटा 1 है वो छोटा है बिकॉज द स्लोप इज लेस. ओवर हियर द थीटा 2 इज मोर देन थीटा 1 बिकॉज द स्लोप इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. वो हॉरिजॉन्टल से लाइन धीरे 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 वर्टिकल हो रही है. सो द स्लोप इज इंक्रीजिंग. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लोप and the tangent. Now we are interested to find out next term, that is the differentiation. तो differentiation के लिए
आपको कुछ बातें हैं जो एज्यूम करनी पड़ेगी, राइट? ओके, सो यहाँ पे हम ले रहे हैं टॉपिक डिफरेंशिएशन. ओके, differentiation. Okay, so in differentiation, first thing that you should know is it is to be expressed as dy by dx. यहाँ पे y और x है वो वेरिएबल है, वो कुछ भी हो सकता है. जैसे कि आप a इमेजिन करो, b इमेजिन करो, t, z, कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हो. लेकिन जो ये d है वो एक मैथमेटिकल टूल है, डिफरेंशिएशन का एक टूल है. सो दैट शुड रिमेन एज इट इज, वो ऐसे ही रहेगा जैसा अभी आप देख रहे हो, राइट? ओके, सो इसको कैसे, हाउ यू कैन रीड इट? ओके, सो इट इज dy बाई डी एक्स. आप ऐसे भी बोल सकते हो या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर आप बोलो dy बाई डी एक्स, सिंपल. ओके, so dy by dx can be expressed as y2 minus y1 upon x2 minus x1. अरे ये तो पहले भी आ चुका है, राइट? ओके, you will say that it is a slope or you can say that it is a tan theta. So why there is a concept of differentiation that we are learning when we already aware of slope and the tan theta? See, अभी अभी हमने जो किया उसके लिए ग्राफिक पार्ट इज रिक्वायर्ड, राइट? यहाँ पे हमने जो भी कैलकुलेशन हमें करने थे उसके लिए y2 y1 या x2 x1 पॉइंट्स ऑब्टेन करने होते हैं. वो ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास ग्राफ होना चाहिए, एंड फ्रॉम ग्राफ वी विल ऑब्टेन पॉइंट्स, विल फाइंड आउट tan थीटा और विल फाइंड आउट द स्लोप. बट डिफरेंशिएशन इज अ टूल थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट द स्लोप विदाउट एनी ड्रॉइंग्स. सिर्फ 2 या 3 मैथमेटिकल स्टेप्स करने रहते हैं एंड यू कैन फाइंड आउट इट इजीली. सो उसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं. ओके, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ आइडेंटिटीज होती है. ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वो एज्यूम करके ले रहे हैं बिकॉज दिस थिंग इज रिक्वायर्ड इन फिजिक्स. ये लेक्चर फिजिक्स का है, उसमें जो भी मैथ्स के फंडामेंटल्स चाहिए वो मैं आपसे करवा रहा हूँ, स्पेशली फॉर बायोलॉजी. ओके, बायोलॉजी जो लेने वाले हैं उनके लिए. ओके, डिफरेंशिएशन मैथ्स वालों में तो आने ही वाला है, 11th में लेटर एंड 12th में आने वाला है, ठीक है? तो अभी आप थोड़ा सा डिफरेंशिएशन एज्यूम करके थोड़ा सा सीख लो, राइट? ओके, सो लेट अस से दैट इक्वेशन इज गिवन विच इज इक्वल्स टू y is equals to x, y is equals to x, and if I want to find out its differentiation then that can be given as dy by dx. dy by dx is a differentiation. ओके, कैसे करना है? x का डिफरेंशिएशन आपको करना है, y इज इक्वल्स टू x, तो आप लिखोगे जैसे कि यहाँ पे dx by dx हो गया बिकॉज y इज इक्वल्स टू x है इसीलिए, एंड dx कैंसल हो जाएगा एंड योर आंसर कम्स टू 1. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू द डिफरेंशिएशन. नाउ लेट अस ट्राई फॉर दिस. सेकंड में हम कर रहे हैं y इज इक्वल्स टू 1. तो इसमें क्या हो रहा है, देखो y इज इक्वल्स टू 1 है. हमेशा ये बात याद रखना कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है वो जीरो होता है. देखो y इज इक्वल्स टू 1 है, वो एक कांस्टेंट चीज है, तो इसके लिए dy बाई डी एक्स होता है 0. dy बाई डी एक्स होता है 0. तो ये ऑब्वियस सी बात है. क्यों? देखो यहाँ पे हम ग्राफिक्स से ये चीज हम प्रूव करते हैं. ओके, जस्ट फॉर योर आइडिया. ओके, तो लेट अस से दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, y वर्सेस x का ग्राफ है. यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 1 दिया है. इट मीन्स दैट इट इज अ कांस्टेंट लाइन. ओके, ये 1 हो गया. ओके, y इज इक्वल्स टू 1 है. फॉर एनी वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ y इज 1. ओके, अभी आपको पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप तो 0 होता है, राइट? ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट. लेट अस टेक द थर्ड केस. थर्ड केस में हम ले रहे हैं, लेट अस से y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ओके, तो ये थोड़ा अलग है, ध्यान रखना है आपको. इसके लिए हम एक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं. y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू n दिया है. ओके,
तो dy by dx होता है, ये n जो पावर है उसको आपको आगे लेना है, तो ये हमने आगे ले लिया। देन आफ्टर इट इज x रेस्ट टू n माइनस वन, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला ये है, राइट। y is equals to x raised to n, then dy by dx can be given as n into x raised to n minus 1. So now you consider that y is equals to x square is there. Now you compare this, you will find that value of n is equals to 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि dy by dx can be given as n की वैल्यू रख दे सिर्फ, तो n is equals to 2 है, ओके। x as it is लिखोगे और यहाँ पे 2 minus 1 होगा and that is equals to 2 into x. So I can say that dy by dx is equals to 2x. ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है, देखो x स्क्वेयर दिया है, आपको 2 को आगे लेना है, x को एज इट इज रखना है, और जो पावर है उसको यू डिक्रीमेंट इट बाय 1, आप उसको 1 से सबट्रैक्ट कर दो, सो दैट इज 2x। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे आ सकता है, राइट। लेट अस टेक वन मोर ऑन दिस, फोर्थ ले रहे हैं। सपोज y इज इक्वल्स टू एक्स रेस्ट टू 6 दिया है, y इज इक्वल्स टू एक्स रेस्ट टू 6 दिया है, सो नाउ यू कैन डू इट, राइट। आप ये कर सकते हो, खुद वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो, यू विल गेट द आंसर। कुछ नहीं करना है, 6 को आगे लेना है, ले लिया, x को एज इट इज रखना है, रख दिया, एंड देन आफ्टर आपको यहाँ पे x रेस टू इसको डिक्रीमेंट बाय 1 करो, सो इट इज इक्वल्स टू 5, 6 minus 1 is 5, 6x raised to 5, that is my answer. Now let us try for this, okay। फिफ्थ है y is equals to x raised to minus 3, okay। यहाँ पे सब लोग ज़्यादा गलती करते हैं, इसीलिए हमने ये पर्टिकुलरली लिया है। क्या करना है आपको, dy by dx ढूंढना है, सॉरी दिस वाज dy by dx, ओके। सो dy by dx इज इक्वल्स टू -3 को आगे लेना है, प्लीज बी केयरफुल, पूरा -3 है वो आगे आएगा, एंड देन आफ्टर x रेस्ट टू -3 -1 होगा इसमें, एंड दैट इज हाउ योर आंसर कम्स टू -3 इंटू एक्स रेस्ट टू -4। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट द माइनस साइन, यहाँ पे गलती होने के चांसेस है, राइट। Let us do one more, so that is y is equals to 5x square, y is equals to 5x square। so if I will do for it dy by dx, अभी देखो यहाँ पे एक कांस्टेंट है that gets multiplied with x square। अगर कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको डिफरेंशिएशन नहीं करना है, उसको टच नहीं करना है, 5 को आप एज इट इज रखोगे, आप सिर्फ करोगे एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, सो इट विल बी 2x, ओके, एंड दैट इज हाउ माय आंसर इज 10x, ओके। लेट अस टेक वन मोर, सो y इज इक्वल्स टू सपोज 5x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 है, ओके, राइट, ओके। सो इन दिस केस व्हाट कैन बी डन, सो dy by dx इज इक्वल्स टू, अभी हर एक इंडिविजुअल टर्म है उसके ऊपर डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा, राइट। जैसे कि ये 5x स्क्वेयर है तो आप उसको एक अलग टर्म सोचो और उसका अलग से डिफरेंशिएशन कर लो, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ ऑलरेडी कर चुकी है, राइट। 5x स्क्वेयर तो उसका डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं, इसीलिए आई एम पुटिंग द वैल्यू डायरेक्टली, इट इज 10x प्लस 2x, ओके। तो 2x में 2 कांस्टेंट है, उसको कुछ नहीं करना है, x का डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं, उसकी वैल्यू 1 आती है, हमने फर्स्ट वाला जो किया था वो, प्लस 1 है वो तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, राइट, ओके। अभी इसको हम लिखते हैं फिर से, सो 10x प्लस 2, दैट इज द आंसर, ओके। तो आप देखो यहाँ पे कोई भी ग्राफिकल मेथड हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी स्लोप फाइंड आउट करना चाहो तो इस मेथड से, इस स्टेप से, सिर्फ 2 ही स्टेप में आप अपना आंसर लेके कर सकते हो, राइट। इट इज़ वेरी इजी। हमने टोटल 3 फॉर्मूलाज किए हैं डिफरेंशिएशन में जो हमारे दिमाग में आने ही चाहिए, राइट, ओके। सो एक बार जस्ट रिपीट करवा देता हूँ, ओके। इफ़ देर इज़ अ कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, राइट। इफ वी आर हैविंग एनी टर्म लाइक दिस x रेस टू n जैसा कुछ है
तो उसके लिए हम लिखेंगे n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, दैट इज द डिफरेंशिएशन, राइट? ओके, एंड if we are having the term x and if you want to find out its dy by dx, ओके, y इक्वल्स टू x है और आपको उसका dy by dx करना है, तो उसका वैल्यू आएगा 1। तो ये तीन चीज़ें अच्छी तरीके से हमें करनी है, राइट? नाउ आई एम गिविंग यू द होमवर्क, फर्स्ट टाइम हम ये आपको होमवर्क दे रहे हैं, सो प्लीज़ डू इट एंड आप मुझे जो भी आप होमवर्क कर रहे हो सो आप प्लीज़ व्हाट्सअप कर देना, ओके? हियर इज़ द नंबर, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट? ओके, सिर्फ 10 मिनट्स लगेंगे क्वेश्चन 1 और 2 दोनों को करने के लिए, ओके? एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर माई नेक्स्ट फिजिक्स टॉपिक, ओके? सो प्लीज़ 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 डू इट, ओके? एंड just WhatsApp me so that I'll check for errors. If you have any doubt then please ask me, okay? Thank you so much.